Hello students, I am Rajeshri ma'am and you are watching English Guidance for School Children. Today I am explaining a poem from the book New Oxford Modern English Class 8 Last Lesson of the Afternoon. This is a poem written by David Herbert Lawrence or popularly known as D.H. Lawrence. D.H. Lawrence was an author, a novelist. He is better known for his novels. D.H. लॉरेंस जो है वो अपने नॉवेल्स के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनका एक कविता लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून. The background of this poem is that the poet D.H. Lawrence was a teacher in a school near London, and at that time it is written in 1912. At that time the education became compulsory for all in England. ये टी.एच. कविता जो है ये 1912 में लिखी गई थी और उस समय इंग्लैंड में एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी हो गया था. बट एवरीबॉडी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग or getting educated in the school, but it was compulsory, so students had to be in the schools, and but the teachers would have to put a lot of effort to educating those type of students who did not have any interest in education. तो ये कविता इस समय लिखा गया था. उस समय डी.एच. लॉरेंस एक स्कूल में पढ़ाते थे और एजुकेशन कंपलसरी हो गया था. लेकिन सभी बच्चे, जब नए नए बच्चे सब स्कूल में आने लगे, सब बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन टीचर को ज़बरदस्ती उन लोगों को पकड़ के पढ़ाना पड़ता था. एंड इट बिकेम अ वेरी टायरिंग tiring job for the poet, and he was varied about in his work, and ultimately he left this job of teaching and became a full-time author and a writer afterwards. So this is the background of the poem. यही background है. बाद में वो छोड़ के, टीचिंग लाइन छोड़ के, जो डी.एच. लॉरेंस वो अपना पूरा समय वो लिखने में बिता दिए थे बाकी ज़िंदगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. फर्स्ट आई एम रीडिंग आउट द पोएम, रिसाइटिंग द पोएम लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tucked the leash and strained apart a pack of unruly hounds I cannot start? Them again on a query of knowledge they hate to hunt. I can haul them and urge them no more. No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks, a full 60 of several inserts of blotted pages and scrawl of slovenly work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good to them or me I cannot see. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults in punishment? I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? What is the point of this teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point? To us both, it is all my aunt. Yet I am supposed to care with all my might. I will not, they won't, and they don't, and that's all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. So you should always listen to the poem recitation very carefully. This makes this makes the meaning clear
in a lot, up to a lot. आप लोग अगर रिसाइटेशन को अच्छे से सुनते हैं तो बहुत सारा चीज़ अपने आप लोगों के पास क्लियर हो जाता है. अच्छा, वेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेरीनेस. कब बेल बजेगी, ये माने समय, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लास्ट बेल बजेंगे और वो ये क्लास ख़त्म होगा. बिकॉज इन दिस वेरीनेस ही इज़ नाउ टायर्ड. वेरी मीन्स टायर्ड. टायर्ड हो गए हैं. अब कब ये टायर्डनेस ख़त्म होगा, इसके लिए ही इज़ वेटिंग फॉर द लास्ट बेल. हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लेश एंड स्ट्रेन्ड अपार्ट माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स. वो किस तरह से बच्चों को पकड़े हुए हैं वही जानते हैं. दे आर लाइक पैक ऑफ अनरूली. अनरूली मीन्स इनडिसिप्लिन. हाउंड्स आर द डॉग्स. जैसे कि डॉग्स को ज़बरदस्ती, मैंने बहुत ज़्यादा जो डॉग जो है ना भागने का कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती उसको लोग पकड़ के रखते हैं, उस तरह से बच्चों को भी वो पकड़े हुए हैं. टग द लीश. टग मीन्स टू पुल समथिंग वेरी हार्ड. ही इज़ पुलिंग वेरी हार्ड द लीश. लीश इज़ द chain with which the dogs or any animals are tied. माने वो एक तो उससे लीश से चेन से पकड़े हुए हैं, जैसे कि बच्चों को ज़बरदस्ती. अनरूली हाउंड्स को, दैट मीन्स इनडिसिप्लिन डॉग्स को जैसे कि वो पकड़े हुए हैं. माने उनको he had to put a lot of effort. I cannot start them again on a query of knowledge. Query means something to chase. माने क्वेरी ऑफ नॉलेज मीन्स ये जो नॉलेज के लिए जो चेज है, माने उसके पीछा करना, ये अब और नहीं कर सकते हैं. दे हेट टू हंट. ये बच्चे जो हैं दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू हंट नॉलेज. सो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है. आई कैन हॉल देम एंड आर्ज देम नो मोर. हॉल मीन्स इज टू पुल समथिंग विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट. वो अभी फिर से बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती उसको, ये देयर आर मेनी वर्ड्स विच डिनोट्स दैट ही इज पुलिंग समथिंग वेरी हार्ड. एंड आर्ज देम नो मोर. आर्ज मीन्स टू कन्विंस देम समथिंग हार्डली. एंड वो ज़बरदस्ती इस तरह से समझा बुझा के बच्चों को नहीं बैठा सकते. नो लॉन्गर कैन आई एंड्योर द ब्रांट. ब्रांट मीन्स स्ट्राइक, ब्लो. माने ये जो एंड्योर द ब्रांट ऑफ द बुक्स, किस चीज़ का ब्लो ना, बुक्स का. दैट लाई आउट ऑन द डेस्क. जो डेस्क पे जो रखा हुआ है, जैसे कि वो हमको सारा दिन भर वो ब्लो कर रहा है, मार रहा है मुझे. I cannot endure. Endure means tolerate. I cannot tolerate this anymore. The brunt of the books जो देश में पड़ा हुआ है. A full 3 score of several inserts of blotted pages. 3 scores. This 3 score means 60. 60 pages का ये गंदा काम वाला जो पेज जो है दिया हुआ है, उसका जो वो जो इंसल्टेड है, पेजेस को हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं इस तरह से. एंड स्क्रॉल ऑफ स्लोवेनली वर्क. स्क्रॉल मीन्स जो जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में गंदा करके जो लिखा जाता है. टू राइट समथिंग इन एन अनटाइडी एंड केयरलेस वे. जो लिखा हुआ पेजेस जो है. एंड स्लोवेनली वर्क. स्लोवेनली मीन्स अनटाइडी वर्क. वो क्या है, अनटाइडी वर्क जो है वो पेजेस को इंसल्ट कर रहा है. तो ये they have offered me, that means the students have submitted their untidy works with scrolling on the pages, and I cannot endure this. I cannot tolerate this. I am sick, and what on earth is the good of it all? अब मैं तो सिक हो चुका हूँ, एकदम बीमार हो चुका ये देख के. ये दुनिया में किस चीज़ का किसका काम आएगा? What is the good of it? What is the use of it all for anyone? What good to them or me? I cannot see. ये किसका क्या भला कर सकता? I don't know. I cannot see. मैं नहीं देख सकता. So shall I take my last year of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference. तो
मैं क्या, ये मास मेरा डियर फ्यूल ऑफ लाइफ, फ्यूल मतलब विथ विच वी लाइट समथिंग और वी प्रोड्यूस पावर, जो ये जो है माई डियर फ्यूल ऑफ लाइफ, डियर मीन्स एक्सपेंसिव, मेरा जो जीवन का जो ये पावर जो है, एक्सपेंसिव पावर जो है, वो क्या ऐसा बोझ बन जाएगा, हीप ऑन माई सोल, दैट मीन्स बर्डन, हीप मीन्स योर बर्डन, विल it become burden on my soul, and kindle my wheel to a flame, kindle means light up something, my will means इच्छा, wish, to a flame, वो क्या जला देगा मेरा विल को, विश को, दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, ये जो बच्चे जो है, इंडिफरेंस मीन्स टेकिंग नो इंटरेस्ट, हाँ, तो ये जो ड्रॉस ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉस मीन्स द वेस्ट मटेरियल जो है, ये इंडिफरेंस से बना हुआ जो काम, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है, जैसे कि कबाड़ के तरह है, वो क्या मेरी इच्छा को क्या ख़त्म कर देगा सब कुछ, मैं जो खुद इतना नॉलेज को जो मैं इतना पसंद करता हूँ, वो चीज़ को ख़राब कर देगा, ये देखते देखते मेरा भी वैसा ही हालत हो जाएगा, एंड टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, और ये क्या, टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, क्या वो इसका प्राइस क्या ये इंसल्ट में ही आके रह जाएगा, ये क्या हमारे लिए पनिशमेंट बन जाएगा। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, नहीं, मैं इसके लिए मैं अपना सोल को, मैं अपने आत्मा को और मेरे शक्ति को मैं नहीं ख़त्म नहीं होने दूंगा, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल माई एंड माई स्ट्रेंथ और पावर फॉर दिस, what do I care for all that they do amiss, वो लोग गलती से क्या कर रहे हैं, वो मुझे क्या, उससे क्या लेना देना, why should I bother for it, what is the point of this teaching of mine, यहाँ पे ये टीचिंग का क्या मतलब है मेरे लिए, एंड ऑफ लर्निंग ऑफ देयर्स, और वो लोग भी क्या सीख रहे हैं उससे क्या मतलब है, दिस आर ऑल फ्रूटलेस, no of no use, it all goes down the same abyss, abyss means bottomless pit, that means ऐसा एक गड्ढा जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो वो सब तो वही से ही चला जाएगा, एक तो गड्ढे में ही चला जाएगा जिसका कोई बॉटम नहीं है। What does it matter to me if they can write a description of a dog, और if they can't, अगर वो लोग एक डॉग का डिस्क्रिप्शन लिख पाता है या नहीं पाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरा, what is the use of it to me whether they are writing a description of a dog or not, what is the point, to us both it is all my aunt, क्या मतलब है इसका, to us both, but do both मतलब here are the students as well as the teacher, because whatever the students are doing here in their carelessness has no use for them and for the teacher, either for them or for the teacher, किसी के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग अच्छे से तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। इट इज़ ऑल माई आंट्स, दैट मीन्स ये ऐसे कॉलोकल टोन में ये बोल रहा है जैसे कि हम लोग आम जिंदगी के में बोलते हैं ना, अरे ये क्या मतलब है, वो उसी तरह से इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ ऑल माई आंट का कोई ख़ास मतलब नहीं है, वो सिर्फ गुस्से में आके जैसे कि बोल रहा है, अरे मौसी इसका क्या मतलब है, एंड येट आई एम सपोज टू केयर विथ ऑल माई माइट, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टीचर होने के नाते आई एम सपोज टू केयर, मुझे केयर करना पड़ेगा बच्चों का, विथ ऑल माई माइट, माइट मीन्स पावर, विथ ऑल माई पावर आई हैव टू केयर फॉर द चिल्ड्रेन, आई डू नॉट एंड विल नॉट, यहाँ पे वो फिर से उनका मूड बदल जाता है और बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना ये सब, दे वोंट, वो लोग नहीं करेंगे, एंड दे डोंट, और वो करते भी नहीं, एंड दैट्स ऑल, यही सब कुछ है, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स do not want to do anything, they will not do anything, and this is all, there is no other thing, I shall keep my strength for myself, so मैं अपना पावर मैं अपने लिए रखूँगा, they can keep theirs as well, और वो अपने लिए रखे, why should we beat our heads against the wall, here the
poet is in so much hopelessness that he is saying that teaching those students who do not have any interest in education is beating against the wall. दैट मीन्स जो बच्चों का पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को पढ़ाने का मतलब है दीवार में सर पटकना. ऑफ ईच अदर आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल. सो अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे का सर पटकने का मतलब होता है. आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल. सो अभी हम क्या करेंगे, मैं बैठा रहूँगा और बेल के लिए इंतज़ार करूँगा. सो दिस इज़ द पोएम वेयर द दिस इज़ समवट फनी ऑल्सो because the teacher is in utter despair for his students, and sometimes and all the students can also realize this fact, and even nowadays, and the teachers can also realize it. अभी भी यही होता है, कभी कभी बच्चों के साथ टीचर्स लोगों का इतना ही निराशा होती है. So this is the poem. I hope that students you have understood, and if you have any query, then you can ask me in the comment box. So for this is the end of this video. Thank you.